چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے کہا ہے کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے حکومت نے 2.5 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن بھی وقت پر ہی کرائیں گے۔ مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات وقت پر کرانے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں صدر ادریس میمن اور عہدیداروں سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری مکمل ہے۔ 23 اگست الیکشن کمیشن نے ڈیٹ فکس کی ہے، نوٹیفائی بھی کر دیے، انشاءاللہ ہوں گے۔ ہماری تیاری مکمل ہے۔ سہیل راجپوت کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس اور شہر کے انفراسٹرکچر کے بہتری کے لیے 2.5 ارب روپے حکومت نے منظور کیے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا چیمبر کی میٹنگ میں بھی کہ کل ہی سندھ کابینہ نے 2.5 ارب روپے الوکیٹ کیے ہیں جو امیجیٹ انفراسٹرکچر کی ریپیئر کے لیے۔ ایک تو جو پیپلز بس سروس ہے اس کے 7 روٹ ہیں، وہاں پہ ریپیئر روڈز کا، اور دوسرا باقی شہر میں جہاں جہاں میجر روڈز ڈیمیج ہوئی ہیں ان کی ریپیئرز۔ تو یہ 2.5 ارب روپے انشاءاللہ، اور یہ ایمرجنسی میں کام ہوں گے تو یہ فوراً رول آؤٹ ہو جائے گا۔ صدر KCCI ادریس میمن اور دیگر نے شہر کے مسائل اور انفراسٹرکچر کی تباہلی کا شکوہ کیا۔ میں صرف اگر اسی 2 روڈوں کی بات کر لوں، آئی چندری کا روڈ اور شاہراہ لیاقت، سر ہمارے پاس پوری دنیا کے مندوبین یہاں پر آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، IMF کے لوگ آتے ہیں، ورلڈ بینک کے لوگ آتے ہیں۔ اس کی حالت دیکھیں آپ کتنی خراب اس وقت شاہراہ لیاقت کی، پر یہ بیماریوں کا گھر ہے، تو ویسی ہماری بیسک فیسلٹیز ہم ان کو کوئی دے نہیں پا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ ادریس میمن اور سہیل راجپوت نے ملاقات میں کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کے معاملے پر تاجروں کی FBR کے ساتھ بڑی بیٹھک۔ آل تاجران سندھ کے سربراہوں نے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کی وصولی کو یکسر مسترد کر دیا۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں پر سیلز ٹیکس کا معاملہ مکمل سروے تک نہیں ہوتا تب تک اس عمل کو روکا جائے۔ تاجروں نے ایک بار پھر بجلی کے بلوں پر عائد سیل ٹیکس کے نفاذ کو مسترد کر دیا۔ اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے FBR آفیسر اور تاجروں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں FBR کے RTO 1 کراچی کے کمشنر قاضی افضل، ڈپٹی کمشنر ثناء اللہ سے آل تاجران سندھ اتحاد کے رہنما شریک ہوئے۔ چیئرمین محمد کاشف سبرانی نے بجلی کے بلوں میں 6000 روپے سیل ٹیکس وصول کرنے کے اہم ایشو پر بات ہوئی۔ یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ حل ہونے تک تاجر کسی بھی صورت میں الیکٹرک کا بل ادا نہیں کریں گے۔ GST لگایا جا رہا ہے، 6000 روپے کہیں آ رہا ہے، کہیں 3000 روپے آ رہے ہیں، لیکن بائی مسٹیک 6000 روپے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ 3000 روپے اصل ٹیکس ہے جس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے مسترد کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو ہماری پیشرفت بہرحال یہ ہو رہی ہے، ہماری کچھ پوائنٹس ہیں انہوں نے لکھے ہیں، نوٹ کے اپنے پاس، جو آگے پہنچائے جائیں گے۔ رسپانس آگے سے دیکھیں اچھا آ رہا ہے۔ ہماری یہ 3rd میٹنگ ہے، مفتیٰ اسماعیل صاحب سے بھی کل ویڈیو لنک پہ میری بات ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم نے جو تجویز دی، جو ایڈوائز دی ہم نے آل تاجران سندھ اتحاد کے پلیٹ فارم سے، تو انہوں نے کچھ ایکسیپٹ بھی کیے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے۔ آل تاجران سندھ صدر جاوید قریشی نے کہا کہ جب تک مکمل سروے نہیں ہوتا تب تک اس عمل کو روکا جائے۔ جاوید قریشی نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR سے جمعے کو مذاکرات ہوں گے جس میں مسئلہ حل ہوگا۔ انشاءاللہ فائنل راؤنڈ جو ہے جمعے تک ہم وزیر خزانہ جناب مفتیٰ اسماعیل صاحب اور چیئرمین FBR جناب آصف احمد صاحب سے ہمارے مذاکرات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تاجر برادری کے لیے اچھی خوشخبری لائیں گے، اور آپ کا کیس جس طریقے سے آل تاجران سندھ اتحاد جس طریقے سے لڑ رہی ہے، آپ کو اس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اور آپ کو فخر بھی ہونا چاہیے کہ یہ وہ واحد تنظیم ہے کہ پورے سندھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس میں کراچی سے لے کے کشمیر تک کے تاجر اس کے اندر موجود ہیں۔ FBR آفیسر سے ملاقات میں شریک آل تاجران سندھ کے وفد میں وائس چیئرمین سلیم الدین، فائنانس سیکرٹری آفرین صدیقی، جوائنٹ سیکرٹری محمد ذکی، سینئر نائب صدر محمد یاسین، ایونٹ کمیٹی کنوینر محمد انور غوری، صدر سینٹرل محمد عثمان شیخ، نائب صدر سید محمد عمران، نائب صدر سینٹرل عبد القادر اور نائب صدر ضلع کورنگی راشد علی خان، نائب صدر محمد اسحاق شریک تھے۔ رخ کریں گے سیاسی میدان کا۔ MQM بحالی کمیٹی اور GDA نے بلدیاتی انتخاب سے قبل دوسرے مرحلے میں انتخابی اتحاد کر لیا ہے۔ GDA نے NA 245 پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں ڈاکٹر فاروق ستار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
MQM बहाली कमेटी और GDA बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मिलकर लड़ेंगे। दोनों जमातों में इत्तेहाद हो गया। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम ने फंक्शनल लीग हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को देखते हुए बल्दियाती इंतखाबात से फरार चाहती है। GDA पीर बगाड़ा के फलसफे मुत्तहिद सिंध और मजबूत पाकिस्तान पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी जो काबिज है इस सिंध पर, वो इससे फरार इख्तियार कर रहे हैं और ये 2 डिवीजन्स के वो इलेक्शंस नहीं कराने चाहते। यही वजह है कि इलेक्शंस की सारी तैयारियां हो चुकी थी, उम्मीदवार अपने तमाम खर्चे कर चुके थे, पोस्टर बैनर्स और कैंपेनिंग तकरीबन मुकम्मल थी, इन्होंने इलेक्शंस पोस्टपोन किए। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध के अवाम को मजीद तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मिलकर शहरी और देही इलाकों के मसाइल खत्म करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का भी ऐलान किया। कराची में और सिंध के बड़े शहरों में जो यहाँ की एक नुमाइंदा सियासी अमल था, उसमें जो तकसीम है उसको भी ख़त्म किया जाए। कराची की सियासत की तकसीम को भी ख़त्म किया जाए और सिंध दही और शहरी में जो मज़ीद फासला कायम किया गया है उसे भी ख़त्म किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अवाम जाग चुकी है और दोनों जमातों का इत्तेहाद अच्छा अमल है। इख्तलाफात भुलाकर सिंध की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि साल 2018 के इंतखाबात में 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के मैंडेट को तकसीम किया गया। गुज़श्ता आम इंतखाबात में कराची वालों के वोटों को चुराने की मज़मूम साजिश हुई। आप हमें गुज़श्ता मरदमशुमारी में दीवार में चुनवा चुके हैं। MQM पाकिस्तान ने NA 245 जमशेद रोड पर अपने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि साल 2018 के इंतखाबात में 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के मैंडेट को तकसीम किया गया। इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कराची वालों के वोटों को चुराने की मज़मूम साजिश हुई। आप हमें गुज़िश्ता मरदमशुमारी में दीवार में चुनवा चुके हैं। बहुत दिवाना दरख्वास्त करता हूँ, आप हमें दीवार से लगा चुके, पिछले सेंसस में दीवार में चुनवा चुके, लेकिन आपकी अपनी हर तरह की दीवारें कमज़ोर हो गई हैं। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से और इलेक्शन कमीशन से भी कि इस हवाले से कोई डंडी मारी गई तो कराची फिर डंडा बरदार होकर निकलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI को तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आइंदा इंतखाबात में PTI जीते तो हमारे बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश करे। हमने ये अकेले जिम्मेदारी नहीं ली हुई है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए। हुकूमतों को बचाकर हमने जमहूरियतों को बचाया है। कई वक्त में हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI को अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए और अपनी हुकूमत खुद बनानी चाहिए। MQM के इलेक्शन ऑफिस इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर, नामजद उम्मीदवार मुईद अनवर और राब्ता कमेटी के अरकान समेत कारकुनान भी मौजूद थे। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने 10 से 11 अगस्त को हैवी स्पेल की पेशगोई की है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। शहर में सुरमई बादल एक बार फिर बरसने को हैं तैयार। मानसून का नया सिस्टम मशरक सिंध के करीब पहुंच गया। 6 से 9 अगस्त के दरमियान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। बरसात के बाइस कराची, बदीन, ठट्टा समेत नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने 10 से 11 अगस्त को तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कराची समेत अंदरूनी सिंध को खबरदार कर दिया। कल से बदीन, वापस कंबर, शदादपुर, फिर उस्सिस और दादू, इन सारे इलाकों में फिर लो लाइंग पेशनगोई हुई है मेट ऑफिस की कि फिर से एक साइकिल आने वाला है। कराची में भी साइकिल आने वाला है मानसून का, तो इलाके जज्ब नहीं कर पाए हैं पानी को अभी, और एक दूसरा तूफ़ानी बारिशों का साइकिल आने वाला है। इसमें लोगों को तैयारी करनी होगी। जितने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से कराची में फिर से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जावेद कायम खानी, सिटी 21।
सूबाई वजीर मेहनत और सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद खनी के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें हालिया और मुतवक्के बारिशों से दरपेश अवामी मुश्किलात और उनके सदबाब समेत दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फेज़, कराची में कौमी असम्बली की मुख्तलिफ नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत की गई। सईद गनी का इस मौका पर कहना था कि हमारी भरपूर कोशिश है कि बारिशों के बायस जो मुश्किलात अवाम को इस वक्त दरपेश हैं उनका जल्द से जल्द अजाला किया जाए। सदर पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखने वाली जमात है और ये बात साबित है कि हमने हमेशा तरक्याती काम बिला किसी तासुब के कराए हैं। पोल आसिफ खान, शकील चौधरी और अमानुल्लाह मसूद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में सानह हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले फौजी अफसरान, सैलाब और बारिशों से जाँ बहक होने वालों और पार्टी कारकुनान की शहादत पर फातिहा ख़्वानी की गई। कमिश्नर कराची ने साहिली मुकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का नफाज कराची के तमाम साहिली मुकामात समेत हब नहर पर होगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि बुलंद लहरों और बारिशों के बायस समंदर में नहाने, गौताखोरी, तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी लगाई गई है। दफ़ा 144 के नफाज के बाद कराची पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक कराची की हुदूद में 17 अगस्त तक होगा। जैकब लाइन शहाबुद्दीन मार्केट की अकबी सड़क पर सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होने से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। सेवरेज लाइनें चौक गटर भर गए। ये नज़ारे हैं जेकब लाइन के, जहां पर सेवरेज का पानी सड़क पर आ गया है। गंदे पानी और खस्ता हाल सड़क से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे खौफ के साथ स्कूल आते जाते हैं। माल बरदार गाड़ियों से लोडिंग कराने में दुकानदार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैफिक इतना होता है और यहाँ पे फिर स्मेल आती है क्लासेस में, इस वजह से, और बाद में आते हुए कपड़े गंदे हो जाते हैं। हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इस पर, और फिर महल्ले वाले भी हैं, फिर स्कूल भी है यहाँ पर बराबर में। इन चीज़ों को देखते हुए आला हुक्काम तक हमारी रिपोर्ट पहुँचाएं जो ये काम जल्द से जल्द हो यार। रोड पर सीवरेज का पानी कई माह से जमा होने पर सड़कें भी खस्ता हाल होती जा रही हैं, जबकि बदबू और ताफुन अपनी जगह इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस अबतर सूरत हाल से ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर ने तजावुजात हटवाई, एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर ने तजावुजात कायम करवा दी। हालिया बारिशों में नालों पर तजावुजात कायम करने में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सदीकी मुलव्वस निकले। वज़ीर आला सिंध ने एक्शन लेते हुए फौरी ओहदे से हटा दिया। बारिशों से कबल मुर्तज़ा वहाब ने नालों पर से तजावुजात खत्म करवाई थी। महकमा बल्दियात के मुताबिक बारिशों से कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने खुद निगरानी करके तजावुजात खत्म करवाई। तजावुजात पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तहकीकात करवाने के बाद बशीर सदीकी से वजाहत मांगी थी। बशीर सदीकी वजाहत देने से कतराने लगे तो मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को शिकायत कर दी। मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने बशीर सदीकी को ओहदे से हटा दिया। सिंध हुकूमत ने कराची की 25 यूनियन कमेटीज और काउंसिल्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज में मुस्तकिल सेक्रेटरीज की तैनाती के बाद अकाउंट्स बहाल होंगे। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने कराची की 25 यूनियन कमेटीज और काउंसिल्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज में मुस्तकिल सेक्रेटरीज की तैनाती के बाद अकाउंट्स बहाल होंगे। सिंध हुकूमत ने कराची की 25 यूनियन कमेटीज और काउंसिल्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। बात करेंगे आजाद नोहड़ियों से। आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है सरकार ने कराची डिवीजन के 7 अजला हैं, जिसमें कराची सेंट्रल, जिसमें अवस्थी, गरबी, शर्की, जुनूबी, मलिर, कोरंगी और किमरी के 7 अजला हैं। इनकी 25 जो है यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको मुजम्मद कर दिया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके सिंध बैंक को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इनके अकाउंट मुजम्मद करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से सिंध सरकार ने फैसला किया है। इन 25 यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज में मुस्तकिल सेक्रेटरी की जो है तैनात तक जो है अकाउंट मुजम्मद रहेंगे। उसके बाद अफसरान की तैनात के बाद ये अकाउंट बहाल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है सिंध सरकार ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक इन 7 अजला की 25 यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज के अकाउंट मुजम्मद कर दिए। अकाउंट्स मुजम्मद कर दिए। ठीक है आजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
शहर कायद में महंगाई के आसेब ने गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गंदम की जिला बंदी को जावाज बनाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। 2.5 नंबर आटा 10 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 1000 रुपए और कहीं कहीं इससे ज्यादा कीमत पर पहुंच गया। फाइन आटा भी 10 रुपए महंगा होकर 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि आमदनी महदूद है और महंगाई रोज बरोज अखराजात बढ़ा रही है। ऐसे में आटा, दाल, तेल या घी कैसे खरीदें? यार बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल? बस खाना मुश्किल हो गया। एक किलो खिला कट्टा तो खिला नहीं सकता है, इतना पैसा है नहीं किसी के पास। आटा कहाँ से खा सकेगा? ठीक है, दालें आपको पता है, खुद आसमान तक बातें हो रही हैं। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? कब मकान का किराया, स्कूल की बच्चों की फीस कहाँ से पूरा करेगा? शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बेलगा महंगाई को काबू करें ताकि 2 वक्त की रोटी का हसूल आसान हो सके। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पाकिस्तान इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड नहीं है बल्कि 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इल्ज़ामात की सियासत की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो कहीं से भी दुरुस्त नहीं। मुझे अफसोस होता है जब कल पाकिस्तान के एक अहम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमात का झेली इदारा पीटीआई ने करार दिया। मैं समझता हूँ इलेक्शन एक्ट 2017 में कंटेम्प्ट की पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तफरीक की सियासत खत्म करना होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए अलग पाकिस्तान बनाएं और बाकी जमातों और आवाम के लिए दूसरा। नहीं हो सकता कि इनकी जात के लिए एक उसूल हो और दूसरे के लिए दूसरा उसूल हो। मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि अब ब्लैक मेलिंग की सियासत खत्म करनी चाहिए। कैमरामैन फैसल के हमरा, मोहम्मद कामरान, सिटी 21। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 10 साल से तमाम पार्टियों को चोर डाकू कहने वाली पीटीआई के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन बढ़ी। पीटीआई को कोई मसला नहीं था तो इलेक्शन कमीशन का फैसला क्यों रुकवाती रही? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी ममनुआ फंडिंग से मुतलिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था कि फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद लगता था पीटीआई को शर्मिंदगी होगी, लेकिन मामला इसके बरक्स है। उस तमाम जो रिपोर्ट है, जो 60 सफ़ों से ज़्यादा की रिपोर्ट है, जिसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए गए इससे पहले, ना किसी कोर्ट ने, ना किसी इदारे ने, जितनी कल की रिपोर्ट में है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया जो उनका हक पहुंचता है। लेकिन हम समझे थे कि थोड़ा बहुत शर्मिंदा होंगे, कुछ दिनों के लिए पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग के हवाले से कोई मसला नहीं था तो वो फैसला क्यों रुकवाती रही? ब्लॉक करने की कोशिश करते थे कि जी रिपोर्ट ना रिलीज करें, फैसला ना बताएं, फैसला महफूज हो जाता था, फिर जाते थे कोर्ट के पास कि जी फैसला ना सुने। तो भाई अगर कुछ था ही नहीं, अगर इतनी क्लीन रिपोर्ट थी, अगर कुछ किया ही नहीं था, तो फिर आप रुकवा क्यों रहे थे? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल तक कोशिश की। मोहम्मद जुबैर बोले कि 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट सामने है। इमरान खान ने हर जगह से फंड्स लिए। कैमरामैन फरहान के हमरा, मोहम्मद कामरान, सिटी 21। ख्वाजा सराओं की रहनुमा तंजीम UNDP सरापा एहतजाज हो गई। कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध भर के ख्वाजा सराओं और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने UNDP से HIV प्रिवेंशन सर्विसेज से मुतालिक प्रोजेक्ट जारी रखने का मुतालबा किया। UNDP का HIV प्रिवेंशन सर्विसेज से मुतालिक प्रोजेक्ट मुआहदे से पहले ही खत्म होने पर ख्वाजा सराओं और सिविल सोसाइटी ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने UN से HIV प्रिवेंशन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का मुतालबा कर दिया। UNDP ने 2023 तक प्रोजेक्ट का मुआहदा किया था। प्रोजेक्ट ख्वाजा सराओं में HIV की तशखीस से मुतालिक था। प्रोजेक्ट के तहत 1500 ख्वाजा सराओं में एड्स की तशखीस की गई थी।
ख्वाजा सराओं का कहना है कि प्रोजेक्ट को बिना इत्तला अधूरा छोड़कर UNDP ने ख्वाजा सराओं के दरमियान तफरीक को हवा दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने से 22 ख्वाजा सरा बेरोजगार हुए हैं, जबकि 1500 इलाज की सहूलियात से महरूम हुए हैं। UNDP ने एक स्टिग्मा किया है जो ख्वाजा सराओं की तंजीम जिया फाउंडेशन का अचानक से प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और हेल्थ की जो सहूलियात पे हमारी रोक दी गई। एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो सिर्फ ट्रांस को HIV से नहीं चाहता था, ट्रांस के हकूक़ की बात होती थी, ट्रांस को बताया जाता था कि आप भी बराबरी का हक रखते हैं। अब ख्वाजा सराओं के ये है कि जब जेंडर इंटेग्रिटी अलायंस में प्रोजेक्ट बंद होगा तो बहुत सारे ख्वाजा सरा जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिनको हेल्थ की अशद ज़रूरत है, वो अपने जो सेहत से महरूम हो जाएंगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कहना है कि हमारे हकूक हमेशा से सल्ब किए जाते रहे हैं, हमारे मुतालबात को तस्लीम न किया गया तो मजबूरन इस्लामाबाद में UN के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर शामिल करेंगे। IMF से फंड्स जल्द मिलने की खबरों पर रुपए तगड़ा और डॉलर सस्ता हो गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए 80 पैसे तक आ गया। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 11 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया। मईशत के लिए अच्छी खबर, रुपया तगड़ा और डॉलर सस्ता हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में रुपया 4.19% तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे कम होने से डॉलर 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। सिर्फ 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 57 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ की IMF से कर्जे जल्द मिलने की खबरों से मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बेहतर हो गया है और डॉलर की होल्डिंग करने वाले भी डॉलर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। IMF का कर्जा दीगर कर्जों की चाबी है और आर्मी चीफ के अमरीकी ओहदेदार को टेलीफोन से मुल्क की माशी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आई है। पाकिस्तानी मार्केट के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है और IMF के मुस्बत बयानात भी सामने आए हैं, जिससे डॉलर की कीमत में 2 दिनों में 15 रुपए की कमी वाक़ हुई है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 11 रुपए 50 पैसे एक ही दिन में सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे से कम होकर 229 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 17 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए और बरतानी पाउंड 17 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए का हो गया है। इमारती धर्म 3 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 62 रुपए और सऊदी रियाल भी 3 रुपए सस्ता होकर 60 रुपए 50 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। उधर सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि बरामदाद में कमी मईशत के लिए अच्छी बात नहीं है। बरामदादो दरामदाद कम होने से हुकूमत 7,000 अरब रुपए रेवेन्यू का हदफ कैसे हासिल करेगी। सदर FPCCI ने जल्द तमाम सियासी पार्टियों को बुलाकर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाने का भी ऐलान किया। FPCCI इरफान इकबाल शेख ने माशी अदद-ओ-शुमार पर शदीद खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। जुलाई में बरामदाद 24% कम होने से हदफ के उसूल पर सवाल उठाया तो दरामदी मशीनरी क्लियर न किए जाने पर सनतों का चलना भी मुश्किल करार दे दिया। बरामदाद गिरेंगी तो जो हम टारगेट लेके आए हुए हैं कि हम अगले साल, हमारा ख्याल था कि हम 31 से हम जाएंगे तकरीबन 38 पे 37 पे, हम उस टारगेट को कैसे हासिल कर सकेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं मैं जो बताता हूँ। एक तो 24% इसकी डिक्रीज़ हुई है, इसमें क्या नाम है हमारी एक्सपोर्ट्स में और जुलाई के महीने में। और आप ये देखेंगे इंपोर्ट को जब देखेंगे तो इंपोर्ट हमारी 38 जो परसेंट जो है ना वो डिक्रीज हुई है। सदर FPCCI ने कहा कि चार्टर इकोनॉमी पर काम शुरू कर दिया है। जल्द तमाम सियासी पार्टीज को बुलाकर चार्टर इकोनॉमी बनाया जाएगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। हम इंशाल्लाह तमाम पार्टीज को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में बुला रहे हैं और सबके साथ मिलकर हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बने। कम अज़ कम ये मुल्क तो अपने पाँव पे खड़ा हो। अगर मुल्क होगा तो हम होंगे ना, अगर मुल्क नहीं है तो फिर बाकी क्या होगा। सदर FPCCI ने तमाम मुतल्लिका इदारों को कहा है कि सनतें चलेंगी तो ही मुल्क की मईशत चल सकेगी। पाकिस्तान सबसे पहले और इसकी मईशत भी सबसे पहले है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 877 पॉइंट्स इजाफे से 41,068 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म रहे। मार्केट में 877 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.18% इजाफे से 41,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स की बुलंद सतह 41,208 और कम सतह 40,191 रही। दिन भर में 10 अरब रुपए मालियत के 33 करोड़ 3 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,796 अरब से बढ़कर 6,926 अरब रुपए हो गई।
और डॉलर सस्ता होने पर सोने की कीमत में नुमाया कमी आ गई। एक दिन में फी तोला सोना 8,600 रुपए और 10 ग्राम सोना 7,373 रुपए सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $14 सस्ता होकर $1766 फी औंस तक गिर गया और साथ ही मुकामी मार्केट में डॉलर की कदर में नुमाया कमी की वजह से सोना भी सस्ता हो गया है, जिसके बाद सराफा बाजार में एक तोला सोना 8,600 रुपए सस्ता होकर 1,45,300 रुपए तक गिर गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोना भी एक ही दिन में 7,373 रुपए सस्ता होने के बाद 1,24,571 रुपए का हो गया है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर मजीद सस्ता होने पर सोने की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। हमदर्द मतब में रूह अफ़ज़ा की तारीखी गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। तारीखी गैलरी के नकाब कुशाई हकीम सईद की साहबजादी सादिया राशिद ने की। अवाम को रूह अफ़ज़ा की तारीख से रोशनास करवाने के लिए हमदर्द मतब में रूह अफ़ज़ा की तारीखी गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में हकीम मोहम्मद हमीद, हकीम अब्दुल हन्नान समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। इस तारीखी गैलरी में रूह अफ़ज़ा के मुकम्मल सफ़र को बाखूबी बयान किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी और हकीम सईद की साहिबजादी सादिया राशिद ने बताया कि यह हमदर्द का तारीखी मकाम है, इसी वजह से यहाँ हमदर्द की तारीखी गैलरी का क़याम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अच्छी गैलरी बन गई कि इसमें आप सबको रूह अफ़ज़ा की तारीख भी पता चल रही है और यकीनन आप सबने रूह अफ़ज़ा पिया भी होगा और उसको अच्छा भी पाया होगा। हकीम साहब ने जब याद पड़ता है उन्होंने कहीं लिखा था और मुझसे भी बताया था कि जिस दिन मैंने 12 बोतलें बेची पहली रूह अफ़ज़ा की तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैंने 12 बोतलें फ़रोख्त की। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जो 12 बोतलों से शुरू हुआ था वो अब लाखों बोतलों पे फरोख्त हो रही है दुनिया भर में। तकरीब में हमदर्द के डायरेक्टर मार्केटिंग ने रूह अफ़ज़ा की खुसूसियात तफसील से बयान की। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान का ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, इसका अपना टेस्ट है, इसकी अपनी एफिकेसीज़ की वजह से इसकी अपनी एक डिमांड है, जिसके लिए ऊपर वाली ज़ात का करम है और साथ साथ हकीम साहब ने जो कुछ मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी रही है। बल्कि इस साल तकरीबन 25% 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किए और अभी भी कोशिश है कि इसी तरह के टारगेट अचीव करें और आगे बढ़ें। रूह अफ़ज़ा में वो फल फूल और जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जिन्हें रिवायती दवासाजी में नज़रअंदाज किया जाता है।